Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well. Welcome to our YouTube channel Smartly by SSB Institute. This course is presented to you by me Rashmita Sahu. I have been selected as Police Sub Inspector in the year 2018 through MPSC examination and I have appeared for MPSC Class 1 interview in 2019. So friends, as you know that we have started a lecture series on polity by M. Lakshmikant. Today we will be going with the chapter of fundamental rights. Okay, before starting the lecture, students please make your notes so that it will be easy for you to revise while your exams. Okay, so let's start with the chapter. The fundamental rights are enshrined in the part 3 of the constitution. ओके तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है. इट इज़ इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल्स 12 to 35 are related with what? They are related with fundamental rights. In this regard, the framers of the constitution derived inspiration from the constitution of USA. हमने fundamental rights कहाँ से लिया है? तो हमने fundamental rights USA से लिया है. It is rightly described as what? It is rightly described as the Magna Carta of India. ठीक है, आपको ये भी बात याद रखनी है. The fundamental rights are guaranteed by the constitution to all the persons without any discrimination. तो फ्रेंड्स कैसा है, फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो सारे जो भी इंडियन सिटीजन्स है और जो भी कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि फॉरेनर्स को भी उसका मतलब दे आर ग्रांटेड टू देम ऑल्सो. Okay, they are meant for promoting the ideal of what? They are meant for promoting the ideal of political democracy. मतलब fundamental right से क्या होती है? Political democracy की एक stability maintain होती है. Originally हमारे constitution में 7 fundamental rights थे. They were what? Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to property, right to constitutional रेमेडीज. तो इसमें से ना जो राइट टू प्रॉपर्टी है दैट इज आर्टिकल 31 वो डिलीट किया गया था व्हेन ड्यूरिंग 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम कि पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे और उसके बाद उसमें से एक राइट को निकाला गया दैट इज आर्टिकल 31 दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी. तो अभी राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कौन सा राइट है? दैट इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300. पॉइंट टू बी नोटेड. मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, जो भी मैं आपको स्ट्रेस देकर बता रही हूँ वो प्लीज आप अपने नोटबुक्स में नोट कीजिए. ओके, तो ये लीगल राइट हो गया आर्टिकल 300 एक के हिसाब से एंड इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो एट प्रेजेंट अभी 7 में से अगर एक आर्टिकल निकाला तो हमारे पास कितने आर्टिकल्स बाकी है? हमारे पास अभी 6 फंडामेंटल राइट्स है. तो अभी हम इसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं. तो अभी हम इसके फीचर्स देखेंगे. Some of them are available only to citizens while others are available to all the persons, whether citizens, foreigners or legal persons like corporations or companies. अभी देखो थोड़े जो फंडामेंटल राइट्स है आउट ऑफ ऑल द फंडामेंटल 6 राइट्स कि थोड़े जो राइट्स है दे आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स, मतलब जो कि ओनली इंडियन सिटीजन्स है. थोड़े राइट्स है कि जो कि इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स और सम कॉर्पोरेट्स और कंपनीज को भी अवेलेबल है. दे आर नॉट एब्सोल्यूट. नॉट एब्सोल्यूट मतलब restrictions can be placed. Okay, restriction can be placed while some emergencies. They are not absolute but they are what? They are qualified. The state can impose reasonable restrictions on them. Most of them are available against the arbitrary action of the state with a few exceptions like those against the state's action and against the action of private individuals. मतलब जो भी है ना तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? दे आर अवेलेबल टू सिटीजन्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड एंड मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट. ठीक है, विथ सम एक्सेप्शंस लाइक स्टेट्स एक्शन एंड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ठीक है, द नेक्स्ट इज some of them are negative in character, that is they place some limitations on the authority of the state, while others are positive, they confer certain privileges on persons. मतलब अभी देखो जैसे कि हमने देखा कि they are मतलब दे आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन, सम आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स. तो उसमें अभी और एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर नेगेटिव, सम आर पॉजिटिव. ओके, ये एक याद रखना है आपको. दे आर जस्टिसेबल. जस्टिसेबल मतलब जब भी फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड कोई भी अगर इशू होता है सो अ पर्सन कैन मूव टू द कोर्ट फॉर हीज और हर
enforcement and for the violation caused to the fundamental rights. They are defended and guaranteed by Supreme Court. तो कहाँ जा सकते हैं हम लोग? हम अगर हमारे वायलेशन हुआ फंडामेंटल राइट्स का तो वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. Hence the aggrieved person can directly go to the Supreme Court. मतलब उसके बीच में उसको कोई और like he doesn't have to approach to the high district court or high court. He can directly approach to the Supreme Court. They are not sacrosanct or permanent. Fundamental rights are not permanent. They can be changed. The parliament can curtail or repeal them. मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है कि जैसे हमने देखा है कि राइट टू प्रॉपर्टी का जो भी आर्टिकल था, आर्टिकल 31, वो क्या हो गया था? इट वॉज कर्टेल्ड बाय द पार्लियामेंट. सो दे आर नॉट परमानेंट. दे कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम बाय सम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ओके. दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. जब भी नेशनल इमरजेंसी होती है तो ऑल द आर्टिकल्स कैन बी सस्पेंडेड except what article 20 and 21. this point is quite important. आपको याद रखना है कि आर्टिकल 20 और 21 जो है वो ड्यूरिंग इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं की जाती है. ओके. देयर एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया. मार्शल लॉ मतलब क्या? इट इज अ मिलिट्री रूल imposed under abnormal circumstances to restore order. मतलब जब भी जैसे कि नॉर्थ ईस्ट साइड्स में जब भी ऐसा कुछ इश्यूज होते हैं तो वहाँ पे एक मिलिट्री रूल मतलब इम्पोज किया जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 34. तो यहाँ पे क्या होता है, ये आर्टिकल्स वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं. ओके. बट इट इज़ डिफरेंट. मतलब जैसे नेशनल इमरजेंसी में पूरे सस्पेंड होते हैं वैसे सस्पेंड नहीं होते. बट फ्यू आर्टिकल्स आर व्हाट दे आर restricted. Most of them are directly enforceable, while few of them can be enforced on the basis of law made for giving effect to them. Such a law can be made by only parliament. Okay. तो अभी हम देखते हैं हमने थोड़े से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे. अभी हम देखते हैं कि आर्टिकल 12 जो स्टार्ट होता है एग्जैक्टली दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ स्टेट. सो व्हाट इज स्टेट? द टर्म स्टेट is described in the article 12. And how it is described? The state can include government and parliament of India, that is executive and legislative organs of the union government, government and legislatures of states, that is executive and legislative organs of the state government, all local authorities, that is municipalities, panchayats, district boards, improvement trust. ये सब किस में आते हैं? ये सब स्टेट में आते हैं. ओके. और जो भी नॉन स्टैट्यूटरी व्हाट वी से ये रहते हैं ना अथॉरिटीज, जैसे कि LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, ये सब किस में आते हैं? डेफिनेशन ऑफ स्टेट में. मतलब स्टेट में ये सब आते हैं. आपको ये याद रखना है. समटाइम्स मतलब वो जब मल्टी लाइनर क्वेश्चन होता है ना तो उसमें पूछा जाता है कि आर्टिकल 12 ऑफ स्टेट contains dash dash dash. Okay. At that time you have to remember government, parliament, legislature, local authorities, municipalities, panchayats, district boards, ONGC, LICs and some other authorities. ये सब किस में आते हैं? आर्टिकल 12 that is state. Okay guys. Now we'll see right to equality, that is article 14 to article 18. तो अभी इसको हम समझने के लिए बहुत ही शॉर्ट वे में और बहुत ही सिंपल हम इसको समझेंगे. राइट टू इक्वालिटी मतलब क्या? हमें एक समान दर्जा मिलना चाहिए. ओके. समान दर्जा कैसे मिलेगा? कि जब भी हमको कोई प्रॉब्लम होता है तो इट शुड बी इक्वली हेल्ड और इक्वली हमको जो भी डिसीजन मिलता है चाहे वो कोई भी पर्सन हो उसको क्या होना चाहिए? लॉ का इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए और इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. इट इज इंक्लूडेड इन व्हाट? इट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 14. आपको ये याद रखना है. आर्टिकल 15 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. दिस इज इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 15. फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बताती हूँ कि फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जो भी है आपको आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 तक इसको रट्टा मारना है. रट्टा मारना इन सेंस डायरेक्टली जब भी कोई आर्टिकल पूछा जाता है एट दैट टाइम यू शुड अंडरस्टैंड कि हाँ ये आर्टिकल इसका है. ओके. So article 16 is what? Equality of opportunity in matters of public employment. कोई भी employment related हो तो हमको equal opportunity मिलनी चाहिए. Article 17 is related with abolition of untouchability. Same article 18 is abolition of titles except military and academics. मतलब अगर हमें कोई भी टाइटल लेने के पहले ना तो हमको उसका what we say मतलब परमिशन लेनी पड़ती है हमारे गवर्नमेंट से कि हम ये टाइटल ले सकते हैं क्या. मतलब मिलिट्री और एकेडमिक्स का इसका कोई इश्यू नहीं है बट अदर रिलेटेड टाइटल्स को हमको परमिशन लेनी पड़ती है. ओके. सो दिस इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 18. आर्टिकल 14 to 18 कंसिस्ट ऑफ व्हाट? राइट टू इक्वालिटी. द नेक्स्ट इज
राइट टू फ्रीडम। अभी राइट टू फ्रीडम में कौन से आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल 19 टू 22। तो इसमें देखो 6 सब आर्टिकल्स है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ व्हाट? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। ठीक है, दिस इज व्हाट आर्टिकल 19। अभी ये जो 6 राइट्स है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी अपने मतलब फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो। You can assemble anywhere, okay? You can associate, you can form some groups and teams. आप कोई भी जगह one place to another आप movement कर सकते हो। You can reside in any place, okay? You can adopt any profession. ये सब किस में आता है? This is under article 19। ठीक है, अब आर्टिकल 20 देखेंगे, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर कोई भी ऑफेंस करते हैं तो उसके रिलेटेड हमको प्रोटेक्शन चाहिए। हमको इंसेंस जो भी ऑफेंसेस कर रहा है उसको सम रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही शुड गेट प्रोटेक्शन। Article 21 is very important because Article 20 and 21 are not suspended during national emergency. Point to be noted, guys. Protection of life and personal liberty, that is Article 21. Right to elementary education, point to be noted, 21A हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, that is protection against arrest and detention in certain cases. तो ये है Article 22। तो राइट टू इक्वालिटी देखा हमने, राइट टू फ्रीडम दैट इज द सेकेंड, मतलब हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अभी हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दैट इज आर्टिकल 23 एंड 24। तो उसमें क्या आता है ना, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मतलब जो भी ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बींग्स की, मतलब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम जो बोलते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो इंडिया से जो भी होगा दैट इज इन वॉट, दैट इज इन आर्टिकल 23। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब 12 ईयर्स या 14 ईयर्स जो भी अभी फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से जो भी एज है तो उसका प्रोहिबिशन होता है, मतलब वो चिल्ड्रंस को वहाँ पे अलाउड नहीं होता है फैक्ट्रीज में। दिस इज व्हाट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दैट इज पॉइंट टू रिमेंबर आर्टिकल 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अभी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हर किसी को राइट होना चाहिए, है ना? तो उसमें देखो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 आपके पास एक मतलब कोई भी रिलीजन का प्रोफेशन करना है आपको, चाहे वो आई विल नॉट टेक द नेम्स, बट आप कोई भी रिलीजन ले लो, उसके आपको यू हैव द राइट, यू हैव द अथॉरिटी टू प्रैक्टिस इट एंड टू प्रोपोगेट दैट रिलीजन, ओके? यू हैव द राइट टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है? दिस इज इन व्हाट आर्टिकल 26। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए यू हैव द फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है? मतलब टैक्सेस पे करना, इट इज नॉट द नेसेसिटी। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्शिप्स, मतलब कोई भी टेम्पल में जाना या कोई भी एनी रिलीजियस जो भी हमारे वर्शिप के प्लेसेस होते हैं, सो यू हैव फ्रीडम, मतलब कोई भी आप उसमें अटेंड कर सकते हो। दिस इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 28। दिस इज नॉट विजिबल, सॉरी फॉर दैट। Now we'll be seeing the cultural and educational rights that is included in article 29 and 30. So protection of languages, scripts and culture of minorities, it is in article 29। मतलब हमारा जो भी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, या तो फिर माइनॉरिटीज रिलेटेड उनका जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है उसका प्रोटेक्शन हमारा एक राइट है, दैट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 29। और ये जो आर्टिकल्स मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये एग्जाम में सेम वर्ड्स में सेम ऐसे ही पूछे जाते हैं। यू हैव टू बाय हार्ट इट, बाय बोलते हैं ना रट्टा मारना है, बस रट्टा मारना है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ओके, ये आर्टिकल 30 में है। Now we have article 6, मतलब article 32, that is the 6th right, right to constitutional remedies। तो ये क्या है? राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग। तो अभी ना हमारे पास सुप्रीम कोर्ट को हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। तो अगर कोई भी वायलेशन रिलेटेड ऐसे होता है हमारा आर्टिकल्स का, तो वी कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर जस्टिस। तो इसमें 5 टाइप के रिट्स है, दैट इज हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड क्वियो वारंटो। हम लोग ये डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे, ओके? तो अभी हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू द फॉरेनर्स। गाइज ये भी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं कि कौन से आर्टिकल्स दे आर अवेलेबल ओनली टू इंडियंस एंड टू अदर फॉरेनर्स। तो जो हमने देखा था आर्टिकल 15, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकते हैं,
ओके, रिलेटेड टू ऑन ग्राउंड्स ऑफ व्हाट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो है ना, ये आर्टिकल 15, दिस इज इंक्लूडेड ओनली फॉर व्हाट, ओनली फॉर इंडियंस, और कोई फॉरेनर के लिए नहीं है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जॉब रिलेटेड जो भी है वो सिर्फ हमारे इंडियंस के लिए, दैट इज आर्टिकल 16। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स हमने देखा था आर्टिकल 19 में, वो मूवमेंट, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, रेसिडेंस, प्रोफेशन, आपको ये याद रखना है। आर्टिकल 19 भी, दिस इज ओनली फॉर व्हाट, इंडियन सिटीजन्स। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ये भी जो है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए है। ओके, बेसिक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनना पड़ेगा, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न इट ऑल्सो। अभी हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, ठीक है। तो उसमें देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ, अभी लॉ के सामने तो हम जैसे कि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ इंडियंस को ही लॉ मिलना, इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, फॉरेनर्स को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, कैसा है ना, तो फिर ये क्या है, इट इज अवेलेबल टू व्हाट, फॉरेनर्स ऑल्सो। पॉइंट टू बी नोटेड, आर्टिकल 14, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, अगर कुछ ऑफेंसेस होता है तो फिर उसके रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन है वो दोनों को अवेलेबल होना चाहिए, सिटीजन्स और फॉरेनर्स, आप ऐसे याद रख सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो देखो फ्रेंड्स, लाइफ की तो मतलब सेफ्टी जो है वो हर किसी को मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो बस इंडियन है तो ही उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप उसको ये इससे याद रख सकते हो। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आप ये भी ऐसे याद रख सकते हो कि एजुकेशन इज कंपलसरी, मतलब कंपलसरी नहीं बोल सकते हम लोग, बट एजुकेशन इज मस्ट फॉर ऑल, है ना। तो इसीलिए सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स, दैट इज आर्टिकल 21A। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये भी है ना, तो इंडियंस ही क्यों, फॉरेनर्स को भी इसका प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिकिंग, अगर जो ट्रैफिकिंग होती है, छोटे चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोलो या तो फिर गर्ल्स ट्रैफिकिंग बोलो, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, ऐसा तो नहीं है ना बस वो इंडियंस को ही मिलना चाहिए, फॉरेनर्स को भी ये राइट मिलना चाहिए, ऐसे याद रखना है। थोड़े से पॉइंट मैं आपको स्ट्रेस दे रही हूँ, सो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ऐसा है क्या सिर्फ इंडियन के ही बच्चों को मतलब फैक्ट्रीज में काम नहीं करने देना चाहिए अंडर 14, बाकी फॉरेनर्स के रहेंगे तो चलेगा? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, तो ये क्या है यहाँ पे, ये दिस राइट्स आर ऑल अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स बोथ। ट्रिक्स आप अपनी आप बना सकते हो, बट मेरी ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ मैं कैसे याद रखती हूँ। तो अभी देखो, जो रिलीजन का है, जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो ये तो दोनों को अवेलेबल होना चाहिए, फॉरेनर्स को भी, इंडियन सिटीजन को, कॉमन है। तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो हमने पहले देखा था, तो दीज आर द आर्टिकल्स विच आर अवेलेबल टू बोथ फॉरेनर्स एज वेल एज इंडियंस। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी के हमने तो देखा था, अभी एक्सेप्शंस उसके लिए कौन कौन है। The rule of equality before law is not absolute and there are constitutional and other exceptions to it. The President of India and the Governor of States enjoy the following immunities. तो आर्टिकल 361 आपको याद रखना है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है ना, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, मतलब वो जो भी यूज़ करते हैं उनके पावर्स या जो भी काम करते हैं उसके लिए दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। ओके, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और continued against the president or the governor in any court during his term of office, जब भी मतलब उनका जो पीरियड है, जब भी वो ऑफिस में है, प्रेसिडेंट का जैसे कि 5 years हम बोलते हैं, गवर्नर विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो भी रिलेटेड उनके होते हैं तो दे कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट देम। ओके, तो ये उनका एक प्रिविलेज हो गया। द नेक्स्ट इज no process for the arrest or imprisonment of the president or the governor shall be issued from any court, मतलब जब भी वो उनके ऑफिस के टर्म में है, दैट इज़ 5 years और जैसे भी उनका टर्म है, तो मतलब उनके अरेस्ट को लेकर या तो फिर उनके जो उन्होंने जो काम किया है ना उसके लिए उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड, मतलब अगर उन्होंने कुछ भी ऐसे काम किया है, जैसे कि सिविल प्रोसीडिंग्स हम लोग बोल सकते हैं कि पर्सनली, ओके, तो एक्ट डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी वेदर बिफोर और आफ्टर ही एंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस, मतलब ऑफिस के पहले या ऑफिस के बाद कभी भी उन्होंने ये काम किया हो तो 2 महीने पहले, ओके, 2 महीने पहले उनको एक नोटिस देनी पड़ती है अगर उनके ऊपर कोई सिविल चार्जेस लगाने हैं तो सिविल प्रोसीडिंग्स के, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर टोटली बैंड, मतलब उसको वो नहीं लगा सकते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट है नो पर्सन शैल बी लायबल
to any civil or criminal proceedings in any court. अभी देखो कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के जो भी हम लोग कोर्ट में केसेस होते हैं ना, तो अगर कोई पर्सन ने कुछ न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया या तो फिर रेडियो में टेलीविजन में कोई न्यूज़ डाल दी कि ये ऐसे ऐसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसे हो रहा है, तो वो पर्सन के खिलाफ में ना कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होती है। तो आर्टिकल 361 ये बताता है, आपको ये याद रखना है। ओके, तो नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम। मतलब वो पार्लियामेंट में जो भी वोट देता है या जो भी कुछ बातें बोलता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं उनकी जो बहस होती है, तो अगर ये बहस पे भी उनको कोई भी उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं होता है, तो दिस इज इन व्हाट, इट इज इन आर्टिकल 105। तो ऐसा ही है स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स ने भी ऐसे कुछ बोला तो उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स होती नहीं है। दिस इज इन आर्टिकल 194। ये थोड़े से आर्टिकल से जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। द फॉरेन सोवेनर्स दैट आर रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जो कि फॉरेन एम्बेसडर्स, रूलर्स और डिप्लोमेट्स होते हैं, तो उनको क्रिमिनल और सिविल दोनों की भी प्रोसीडिंग्स से वो बचते हैं। द यूएनओ एंड इट्स एजेंसीज एंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो ये 6 पॉइंट्स है, आपको ये याद रखने हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि हमारे रिट्स हैं। तो वी हैव ऑलमोस्ट 5 टाइप्स ऑफ रिट्स दैट आर हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड क्यो वारंटो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 32 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हम ये रिट्स को डिटेल में देखते हैं। ओके, हैबिस कॉर्पस, it is a Latin term which literally means to have the body of. It is an order issued by the court to a person who has detained another person. मतलब ये ऑर्डर कौन देता है? कोर्ट देती है। किसको देती है? जिसने किसी और पर्सन का डिटेन किया है। डिटेन इन सेंस व्हाट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज इट इज़ अ वोकेबलरी। ठीक है, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ लेटर बिफोर इट। मतलब डिटेन यानी अभी सपोज एक पुलिस ऑफिसर है जिसने वो क्रिमिनल को पकड़ा है, तो उसको हैबिस कॉर्पस क्या बोलता है कि वो जो क्रिमिनल है उसको हमारे सामने लाओ। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज हैबिस कॉर्पस। मैंडेमेंस मीन्स व्हाट, वी कमांड। इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट। कमांड कौन दे रहा है? कोर्ट दे रहा है टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम to perform his official duties that he has failed or refused to perform। मतलब उसके जो ऑफिशियल ड्यूटीज है वो परफॉर्म करने के लिए मैंडेमस कमांड करता है। तो ये आपको यम ऐसे याद रख सकते हो, कमांड मैंडेमस ऐसे। ओके, हैबिस कॉर्पस को कैसे याद रखोगे? हैव द बॉडी ऑफ हैबिस कॉर्पस। ओके, एच आपको थोड़ा सा लॉजिकल थिंक करना पड़ेगा। अभी नाउ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब क्या? टू फॉरबिड समथिंग। इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। ठीक है, मतलब ये सपोज एक हायर कोर्ट से, जैसे हाई कोर्ट किसको देगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसको देगा? उसके सब डिविजन्स को देगा। तो ये प्रोहिबिशन की उनके जो भी जुरिडिक्शन के बाहर वो ना जाए, इसीलिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज certiorari. It is meant to be certified or to be informed. It is also issued by whom? It is issued by higher court to a lower court to transfer a case। मतलब जो भी एक पेंडिंग केस है उसको ट्रांसफर करने का, लोअर केस को हायर केस में, मतलब हायर कोर्ट में वो देगा, लोअर कोर्ट। ओके, क्यो वारंटो मतलब क्या? It means by what authority or by what warrant it is issued by the court to inquire into the legality of claim of a person। मतलब by what authority or by what warrant you are doing। okay, तो आपको ये 2 चीजें, आपको ये 5 चीजें याद रखनी है, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड क्यो वारंटो। ठीक है, अभी हम देखेंगे जो भी हमने देखा था उसका आप मुझे जिस्ट में मैं आपको बताती हूँ। फंडामेंटल राइट्स जो थे वो 6 टाइप्स के थे। उसमें हमने राइट पहले 7 थे, तो उसका हमने क्या किया था? राइट टू प्रॉपर्टी निकाल दिया था, उसको लीगल राइट बनाया अंडर आर्टिकल 300A। ओके, फिर बाद में हमने थोड़े रिट्स देखे अभी 5 टाइप्स के, एंड लेटर ऑन हमने थोड़ा सा ये भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो भी मतलब केसेस जो है रिलेटेड टू गवर्नर, उनके स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार ये लेक्चर फिर से देखिए सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डोंट हेजिटेट टू आस्क, इवन दो द लेक्चर इज क्वाइट लेंथी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।